حضرت مالک بن دینار کو نا کسی شخص نے ریاکار کہہ دیا، اور ریاکار آپ سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ آپ کو ریاکار کہہ رہا، آپ ایک شکر کر رہے ہیں۔ فرمایا شکر انہوں میری ایک کی برائی دا پتہ لگا، باقی دا نہیں سے پتہ۔ فرمایا شکر ہے انہوں میری ایک دا ہی پتہ لگا، باقی دا نہیں سے۔ شکر ہے اس پہ حضرت جس پہ اس نے پردے ڈالے۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے، نماز تو دور، ہمیں آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔ نماز ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ مسجد میں ہم ایسے آتے ہیں بڑا احسان کرنے آ رہے ہیں، مونڈے چوڑے کر کر کے انجن کر دیں، مسجد جانے ہیں۔ اور ظالم تو مجرم ہے، تو مالک کے گھر میں آیا، مجرم اس طرح آتے ہیں؟ تو مجرم ہے، تو اس طرح آتے ہیں مجرم مالک کے گھر میں؟ تو کیوں کندھے چوڑے کر کر کے رب کے گھر میں چل رہا ہے؟ کیا ہے تو کیا ہو؟ تو پھر بھی اس طرح نہیں چل سکتا۔ پہلی بات تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کہوں اگر تو ہو بھی تو پھر بھی اس طرح نہیں چل سکتا حضرت۔ اور کیسی عبادت ہے؟ بیماری میں بھی معاف نہیں، ایسی عبادت کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ۔ اگر تو ہوش میں ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ۔ اگر تو ہوش میں ہے لیٹ کے بھی نہیں تو پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھ۔ پڑھنی ہے، سفر میں نہیں معاف، جنگ میں نہیں معاف۔ اور جی ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے محلوں میں اذان سن کے بھی بے نماز ہیں، اذان سن کے بھی بے نماز ہیں۔ اوے اللہ دے بندو، کل کیڑا منہ لے کے جانا جی رب دے کول؟ وہ سارا علاقہ اکٹھا ہو کے نا بابا جی کے پاس، او بابا جی کیوں بہ رہے ہو دریا دے کنارے؟ آپ نے فرمایا یار انتظار کر رہا ہوں یہ ذرا پانی ختم ہو تو دریا پار کروں۔ لوگوں نے کہا نہیں حضور یہ پانی نہیں ختم ہوگا، آپ کو پانی میں سے جانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ کام کبھی تمہارے لیے رکیں گے، ان کاموں میں ہی تمہیں اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ آپ نے رونے کی 3 قسمیں لکھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہے غم میں رونا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا ہے۔ اور ایک ہے شوق میں رونا، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا رونا ہے۔ اور ایک ہے محبت میں رونا، اور یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا رونا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کسی کو کم تولنے سے برکت ہوگی؟ کسی کا حق کھانے سے برکت ہوگی؟ کتنے ایسے بھی ظالم لوگ ہیں، غریبوں کی زمینیں ہڑپ گئے شرم نہیں آئی ہے، غریبوں کا حق کھا گئے شرم نہیں آئی، یتیموں کی جائیداد پہ قبضے کر لیے شرم نہیں آئی ہے۔ غریبوں کا حق مار کے حج جانے والوں مجھے بتا تو سکی، اگر کسی کا حق کھا کر کے تو نے ترقی کر لی تو تجھے کیا لگتا ہے یہ تجھے تیجے 40 میں بچا لیں گے، 10 میں کی فاتحہ بچا لے گی؟ اگر حق کھا کے مرا ہے یقین جان مصطفیٰ چہرہ پھیر لیں گے۔ اگر جنت میں جانا چاہتا تو اقدار کا حق دے دے، غریبی میں گزارے کر لے، فاقے میں زندگی گزار لے۔ اللہ کی قسم اگر تو فاقے میں زندگی گزارے گا دنیا تجھے نیچی نظر سے دیکھے تو کچھ نہیں ہوتا، مزہ تو تب ہے جب مصطفیٰ دیکھ کے تجھے مسکرانے لگ جائے۔ اگر آقا مسکرائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی شان ہے تسبیح کی، سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن تو زیادہ استغفار کیا کر۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کپڑا میلا ہو جائے نا، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تسبیح خوشبو ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں کا قبلہ بدل جائے، لوگوں کا قبلہ بدل جائے۔ عرض کی محبوب کیسے ہوگا؟ فرمایا لوگوں کا قبلہ ہوگا تو پیسہ بن جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں وقت آیا کھڑا ہے۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ 2 جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش و فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام،
पेट से पत्थर, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है, देख मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए। सुबह उठ के ना रोज एक खत हुजूर को लिख दिया करो। मैं अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चलते फिरते मौतें हो रही हैं, नहीं पता कफन मिले ना मिले, ये भी नहीं पता कांधा मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। चेहरे देखने लायक भी नहीं रहते। एक्सीडेंट देखो, लोग चिपक जाते हैं रोडों से, खुर्च खुर्च के छुटाए जाते हैं। खुदा के वास्ते चलते फिरते ना मौतें हो रही हैं, गारंटी नहीं है। वो दौर और थे कि लोग सफेद बाल के बाद मरते थे, आज कोई उम्र नहीं है। आज तो बूढ़े बैठे रह जाते, जवान चले जाते। जाओ जाके देखो, अक्सर घरों में झांको ना, पूछो जाके इस घर से कितने जनाजे उठे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा पोता चला गया, मेरा बेटा चला गया, 70 साल का बुढ़ा बैठा है, 18 साल का जवान चला गया। गारंटी है कोई नहीं है ना। तो सुबह तुझे पढ़ा दिया उसने, जा उससे जाके पूछ, इसके पास आंखें नहीं है। जा कभी अंधे के दर्द सुन, तू कहते मुझे दिए कुछ नहीं। जा जाके कभी जो बोल नहीं सकता उससे पूछ, उसको पूछना अगर तुझे बोलना नहीं आता तो कैसा लगता है। शायद जवाब तो वो तुझे ना दे सके, लेकिन उसकी आंखों में आने वाले आंसू तुझे सारे जवाब दे जाएंगे। फिर भी तू कहता है मुझे दिया कुछ नहीं। तो शुक्रिया की आदत डालो। थोड़ी सी जिंदगी है, मजा आएगा जिंदगी गुजारने का। ये नाशुक्री से नहीं गुजरेगी, रोते गुजारो। तुमने कहा था अब्बा फीस भरनी है, अब्बा ने जमीन बेची, तुम्हारी फीस भरी है। अगर बाप नहीं मां बेवा है और तुम्हारे स्कूल की फीस और किताबों का दिन आया है, तो खुदा की कसम मां ने कंगन और अपने नाक कान के जेवर बेच दिए, लेकिन तुम्हें कामयाब बनाया है। आज तुम्हारे हाथ में कलम है ना, तो इसका जोर अपने बाप को मत दिखाना, इसका जोर अपनी मां को मत दिखाना। तू मास्टर बन जा, डिप्टी बन जा, कलेक्टर बन जा, कुछ भी बन जा, लेकिन जब मां सामने आया करे तो बचपन का वही गुड्डू बन के आया कर, बचपन का पप्पू बन के आया कर, बचपन का छोटू बन के आया कर। तेरी शान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब माँ बाप के सामने आया करे तो छोटा हो के आया कर। अगर थक के आया करे, इनके कदमों में बैठ जाया कर। खुदा की कसम, 5 स्टार होटलों में भी वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ बाप के कदमों में सर रख के बैठने के बाद मिला करता है। अब एक दिन अपने दरवाजे के बाहर बैठ के रो रहे थे। एक चाहने वाला गुजरा, उसने अर्ज की, हजरत क्यों रो रहे? आपने फरमाया, लगता है अल्लाह अली से खफा हो गया। और करता है, नहीं हजरत, अल्लाह अली से खफा नहीं हो सकता। आपने फरमाया, नहीं मुझे लगता है क्यों हो गया। और करता है, हजरत कैसे लगता है? फरमाया, 7 दिन गुजर गए, अली के घर में मेहमान ही कोई नहीं आया है। हम ज़कात देते हुए रोते हैं, नहीं पुत्र, खुश दिली से ज़कात दो, वो कुछ नहीं रखेगा तुम्हारा, कहीं गुनाह अता करेगा तुम्हें वापस। और आज हमारे ईमान के ज़ौफ़ का ये आलम है कि हम 10 रुपए भी छोड़ने को तैयार नहीं है, हकीकत है। और फिर यहां तक हमारी गंदगी बढ़ गई, लालच इतना गालिब आया, दुनिया की मोहब्बत ने हमें खुदा से इतना दूर कर दिया कि जो अब हालात हैं वो आपके सामने। अब बाजारों में दूध नहीं, केमिकल। हालांकि कभी पानी डालना भी मायूस समझा जाता था, लेकिन हजरत अब तो मैं कहता हूं पानी वाला भी मिल जाए तो गनीमत। जब कोई नौजवान गुनाहों का रास्ता छोड़ के सच्ची तौबा करता है तो फरिश्ते एक दूसरे को खुशखबरियां देते हैं। जो दीगर फरिश्ते हैं वो पूछते हैं, भाई क्यों खुशखबरियां दे रहे हो एक दूसरे को? तो उनको बताया जाता है, एक नौजवान ने गुनाहों का रिश्ता छोड़ के ना अपने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लिया है। फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, उस नौजवान के तौबा के इस फरिश्ते कहेंगे, भाई हम तो हुक्म के ताबे हैं, जो आर्डर होता है हम वही करते हैं। जहन्नम का था तो जहन्नम ले चले, जन्नत का आ गया तो जन्नत ले चले। तू इस तरह कर, तू अल्लाह की बारगाह में रुजू कर, तुझे उधर से जवाब मिलेगा। हदीस पाक का मफहूम जो बुजुर्गों ने बयां किया, वो शख्स अर्ज करेगा, अल्लाह चंगा काम तो सारी जिंदगी कीता कोई नहीं, ये जन्नत क्यों भेजन लगे हो?
تو لکھا ہے اللہ پاک فرمائیں گے وہ بندے ایک رات تو سویا تھا، تو سوتے سوتے نا تو نے کروٹ بدلی، تو جب تو نے کروٹ بدلی تو تیری زبان سے نکلا تھا اللہ، تیری زبان سے نکلا تھا اللہ، ہم نے وہ قبول کر کے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بھئی اگر نکل جائے تو اتنے رنگ لگتے ہیں کہ جی حضرت جی میں وضو کر کے بہ کے تسبیح پڑھ کے کہوں گا اللہ اللہ اللہ۔ اللہ میرا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگ لینا، معافی میں دیر نہ کرنا۔ ہاں اگر لمبی عمر کی دعا اس نظریے سے کی جائے کہ میں اللہ کا زیادہ ذکر کروں پھر اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اگر لمبی عمر کو صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ میں اور عیاشی کروں، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ ہم نے دل لگایا ہے، دل کرتا ہی نہیں مرنے کو، دل کرتا ہی نہیں چھوڑنے کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز کی قبر میں ایک اشدہا آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اشجاع الاقرع، گنجا سانپ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی، اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ لوہے کے ہوں گے، اس کے ہاتھوں کی لمبائی کتنی ہوگی؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کی مسافت جتنی اس کے ہاتھوں کی لمبائی ہوگی۔ وہ بے نماز کی قبر میں آئے گا اور آ کر کہے گا انا اشجاع الاقرع، میں گنجا سانپ ہوں، اور تو نے فجر نہیں نہ پڑھی تھی تو مجھے اللہ پاک نے تیری قبر میں بھیجا ہے، اور تجھے فجر نہ پڑھنے کے جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک ماروں گا۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بے نماز کو ایک ضرب لگائے گا نا اپنے لوہے کی ہاتھوں کی، بندہ زمین میں دھنس جائے گا، اور کیا ہوگا حضرت؟ وہ پھر اس کو نکالے گا اور پھر اس کو ظہر تک مارے گا، اسی طرح کہے گا عشاء سے لے کر فجر تک میں ماروں گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات نہ کی جائے کہ نہیں جی یہ نہیں حضرت، اللہ معافی دے، بڑا ڈاڈا معاملہ ہے، بڑا ڈاڈا معاملہ ہے۔ آج اپنے معاملات کو آسان کرو، جو مجھے میری کیفیت ہے، جو میرا حال ہے میں وہ سنا کے بس۔ یہ ویسے ہماری یوتھ اس بیماری میں بڑی مبتلا ہو گئی، وہ میری تصویر میں 300 لائک ہو گئی، تو بھائی 300 لائک ہو جائیں تو پھر کی ہونا؟ بھائی کو گدھے کو 300 لائک دے دے تو وہ گھوڑا بن جائے گا، وہ گدھا ہی رہنا حضرت۔ 300 لائک سے کیا ہوتا ہے حضرت؟ لائک سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے کو لائک آئے حضرت، دعا کرو کو در سے لائک آئے حضرت، اور آتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کے سلام کا جواب دیا جائے گا، اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا حضرت۔ دودھ میں ہم پانی ملا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لو گے حضرت۔ روٹیاں تو 2 ہی کھانی ہیں، جب کوئی زیادہ کھا لے گا 2 ہی کھانی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے، اتنا ہی کر لے گا، اور تو نے کیا کرنا ہے؟ تجھے پڑھا دیا اس نے، جا اس سے جا کے پوچھ، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جا کبھی اندھے کے درد سن، تو کہتے مجھے دیے کچھ نہیں، جا کے کبھی جو بول نہیں سکتا اس سے پوچھ، اس کو پوچھنا اگر تجھے بولنا نہیں آتا تو کیسا لگتا ہے، شاید جواب تو وہ تجھے نہ دے سکے لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو تجھے سارے جواب دے جائیں گے، پھر بھی تو کہتا ہے مجھے دیا کچھ نہیں۔ شکریہ کی عادت ڈال، تھوڑی سی زندگی ہے، مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا، یہ ناشکری سے نہیں گزرے گی، روتے گزارو۔ وہ روز سورہ رحمان اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتی ہوگی، وہ روز سورہ یاسین کہتی نہیں ہوگی یا اللہ موبائل نہیں چھوڑتا مجھے کھولتا کوئی نہیں، سورہ اخلاص کہتی نہیں ہوگی یا اللہ یہ کیسا پیسوں کا بھوکا ہے، پیسے کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ تیرے محبوب نے کہہ دیا جو ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اس کو 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے گھروں میں جو قرآن کریم پڑھا ہے نا، جو ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہے نا، جس کو کبھی ہم نے کھولا نہیں، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے، یاد رکھنا۔ اے مولوی جی دیکھو ہاں کی ہوا ہے، یہ جس کو کبھی ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں نا حضرت، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے۔ اللہ کو یا چنگی، یا اللہ کیسے لوگ ہیں، کھولتے کوئی نہیں، کھولتے کوئی نہیں، اس کو کھولو حضرت، اور پھر دیکھو حضرت یہ تمہیں کیا کیا بتائے گا۔
मैं कैसे बंदे को भी जानता हूँ हजरत, जो कभी उसी फैक्ट्री में गेट खोला करता था। कहने लगे क्योंकि मैंने गेट खोलना होता था, साहब बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों पे आते, कहते कभी भी किसी की महंगी गाड़ी देख के ना मेरे दिल में अल्लाह के लिए कोई गिला या शिकवा नहीं आया था, बल्कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता था और अपने मालिकों के लिए भी दुआ करता था, या अल्लाह मेरे मालिकान और दे। कहते वो शुक्रिया फिर मेरे मालिक को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मुझे उसी फैक्ट्री का मालिक बनाया। मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जालियों को छू लिया, हाथ लगाया, तो फरमाते हैं उस वक्त जो वहां शुरता खड़ा था ना, उसने इस कदर ज्यादा जोर से मेरे हाथ पर डंडा मारा कि मैं उस डंडे की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। फिर फरमाते जैसे ये दो आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई है। क्या देखता हूं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हूं और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक में मेरा हाथ लेके फरमा रहे हैं, महबूब तक आने के लिए डंडे तो खाने पड़ते हैं। वो सारी कायनात की तख्लीक की वजह आप हैं, आप जान है कायनात की, नब्ज हैं आप कायनात की। ये मोल्टी फॉर्म का गद्दा, ये मास्टर का गद्दा, ये फुलाने का गद्दा, ये सारी उन्हीं के कदमों की खैरात है। लेकिन हुजूर ने नहीं पसंद फरमाया, आपने सादगी को, लेकिन कोई शरी मनाही नहीं है गद्दे पे लेटने में। लेकिन हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैं हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ, महबूब खुदा हजरत। आप लेटे थे ना, जब हजरत उमर फारूक हाजिर खिदमत हुए तो आप हुजूर बैठ गए, तो कहते क्या देखता हूँ कि चटाई की सख्ती के निशान हुजूर की पुश्ते अनवर पे मौजूद हैं। घर में देखता हूँ तो एक खाल लटकी है, एक तरफ खाल साफ करने का मसाला पड़ा है और एक कोने में चंद साजो पड़े हुए हैं। ये है महबूब खुदा की के घर का कुल। खाल लटकी है, खाल साफ करने का मसाला पड़ा है और साथ जनाब चंद साजो पड़े हुए हैं। कहते मुझसे नहीं रहा गया, मैं रो पड़ा। हुजूर ने रोने की वजह पूछी, उमर क्यों रो रहे हो? तो मैंने अर्ज की महबूब देखिए तो सही, पुश्ते अनवर पे चटाई की सख्ती के निशान मौजूद है और वो कैसरो किस तरह हैं, खुदा और खुदा के रसूल के दुश्मन, उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। और ये देखें ये कुल आपका माल है। थोड़े से जो है एक खाल लटकी है और खाल साफ करने का मसाला पड़ा, उमर क्यों ना रोए? तो आपने आगे से फरमाया उमर क्या तू इस बात पे खुश नहीं है कि उनके लिए सिर्फ दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है? हज़रत जी हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, 60-70 साल की जिंदगी को संवारने के लिए हमने अपनी आखिरत खराब कर ली। इस आयत को याद कर लो, कोई मामला बने, वल्लाखिरतु खैरुम व अबका, वल्लाखिरतु खैरुम व अबका। ठंड पड़ जाएगी अंदर और यानी खत्म होना है, आखिरत ने हमेशा रहना है। ना डगमगाओ, ना डगमगाओ। बस जो महबूब ने तरीका दिया तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा, तुम्हें कोई परेशानी। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने कहा यासीन खोलो रहमान खोलो सुबह आपके घर में डॉलर बरसेंगे, कोई इस तरह का काम नहीं होगा। लेकिन क्या है वो जो आपकी 20,000 सैलरी है उसमें इतनी बरकत होगी कि आपसे खत्म ही नहीं होंगे। हाँ जी, वल्लाखिरतु खैरुम व अबका, वल्लाखिरतु खैरुम व अबका, इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। आगे फिर मालिक की मर्जी है, चाहे जो मर्जी रंग अता फरमाए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले नमाज, पहला सवाल नमाज, पहला सवाल नमाज। जब अल्लाह की बारगाह में पेश होना, पहला सवाल नमाज। कुरान करीम में बार बार नमाज। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काफिर और मुसलमान में फर्क नमाज। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दीन का सुतून नमाज। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन की मेराज नमाज। आप इस मसले को इतना लाइट ना लें। फरमाते जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाओ। एक फरमाते हैं जो बेनमाज है वो खिंजीर से भी बुरा है। और आज हजरत हम एलानिया बड़ी दलेरी से बेनमाज हैं।
कोई वजह नहीं है। और कैसी इबादत है, बीमारी में भी माफ नहीं। ऐसी इबादत खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़। अगर तू होश में है, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़। अगर तू होश में है, लेट के भी नहीं तू पढ़ सकता, इशारों से पढ़। पढ़नी पढ़नी है, सफर में नहीं माफ, जंग में नहीं माफ। और जी हम अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने कारखानों में, अपने मोहल्लों में अजान सुन के भी बेनमाज हैं। अजान सुन के भी बेनमाज हैं। ओए अल्लाह दे बंदो, कल केड़ा मुंह लैके जाना जे रब दे कोल। और हज़रत जी आखिरत की फिक्र कोई नहीं। हम हज़रत जी सफ़र करने वाले लोग हैं ना, अल्लाह मैं इसमें आपके साथ शामिल हूँ। अल्लाह है घर कराए का, लेकिन हाल मेरा भी अब यही है। अल्लाह इस दुनिया की कितनी फिक्र है, जहाँ से पता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 45 साल बाद, 50 साल बाद कूच है। कोई इनकारी तो नहीं है कूच करने का। कोई ऐसा शख्स तो यहाँ ये नहीं बैठा जो ये सोच के बैठा कि मैंने कभी नहीं जाना। हर शख्स तस्लीम करता है ना कि जाना है। लेकिन हज़रत जी हमारी दुनिया से मोहब्बत का ये अंदाज देखो कि बाथरूम, बैतुल खला, वाशरूम, लैट्रीन, जहाँ बैठ के हज़रत हमने अपने अंदर की गलाज़त निकालनी है, जहाँ हमने अंदर बैठ के पखाना करना है, जहाँ बैठ के हमने अपने अंदर से पेशाब निकालना है। आप बड़ा आलीशान, बड़ा साफ सुथरा जोड़ा पहन के, सिर्फ एक कतरा आपके कपड़ों पे पेशाब का गिर जाए, आप पहनेंगे वो? ये उसकी गंदगी का आलम है। लेकिन हमारी दुनिया से मोहब्बत का ज़रा आलम देखो। वो लैट्रीन जहाँ बैठ के हमने पखाना करना है, पेशाब करना है, वहाँ हमने लाखों की टैलें लगा दी हैं। लाखों की टैलें, जहाँ क्या करना है पेशाब, जहाँ क्या करना है पखाना। क्या हुआ? लाखों की टैलें लग गई हैं, लाखों की टूटियां लग गई हैं, लाखों के शावर लग गए हैं। लेकिन हजरत कब्र को भूल गए, आखिरत को भूल गए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुजूर पेश होना इसको भूल गए। नहीं हजरत जी, हाथ जोड़ के भी सारे आगे नमाजी हो जो यार, नमाजी हो जो यार। जितने बच्चे हो, ये कैमरा लगा है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक बात जाएगी। जितनी बेटी हैं पुत्र, नमाजी हो जो। सवाल ही नहीं उठता बेनमाज होने का, सवाल ही नहीं उठता। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। मेरे अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद हूँ। काम छोड़ देना, थोड़े कर लेना, काम थोड़ा कर लो। इन यूनिवर्सिटी वालों से कहता हूँ पढ़ाई थोड़ी कर दो बच्चों की। आपसे कहता हूँ अपने काम थोड़े कर दो, अपने नौकरों की ड्यूटी थोड़ी कर दो। सबको रोजे के लिए तैयार करो, खुद रोजा रखो, गर्मी बर्दाश्त करो, भूख बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो। अल्लाह क़यामत के दिन की गर्मी से बचाएगा, भूख से बचाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, अजीब बात हदीस, मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती मर्द औरत बशर है, इंसान है, सबसे गुनाह हो सकता है और बड़े से बड़ा गुनाह हो सकता है, लेकिन 2 गुनाह की मैं तवक्को नहीं रखता। सुनो, अपने नबी की उम्मीद देखो। आपने फरमाया मुझे उम्मीद है मेरा उम्मती 2 गुनाह नहीं करेगा, बाकी जो मर्जी करे। 2 नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो भाइयों, PIA वाले हों, जहाज उड़ाने वाले हों या रेडी चलाने वाले हों, सबके सामने अल्लाह ने एक पेपर रखा है कि मुझे राजी करो, मरने से पहले मुझे राजी करो। अल्लाह को राजी कर लेना फतह है, कामयाबी है, और अल्लाह को नाराज कर लेना शिकस्त है, नाकामी है। किसी कौम का अमल गलत हो जाए ये भी बहुत बड़ी मुश्किल है, किसी कौम का इल्म गलत हो जाए ये तबाही और बर्बादी है। मेरी कौम का इल्म गलत हो गया है, अमल तो ख़राब है ही, इल्म गलत हो गया है कि मेरा देश कहता है पैसे से सारे काम चलते हैं।
पैसे से इज्जत मिलती है, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा तो हमें पूछेगा कौन। ये इल्म की गलती है, ये इल्म फिक्र की गलती है। मेरा नबी कहता है अल्लाह राजी होगा तो सारे काम बन गए, अल्लाह नाराज है तो सारे काम बिगड़ गए। जिंदगी भर सारी जिंदगी एक काम करते रहना, एक काम सारी जिंदगी, जवानी में, बुढ़ापे में, बीमारी में, सेहत में, दिन में, रात में, सर्दी में, गर्मी में, सफर में, हजर में, एक काम करना, एक मेरी सुन्नत पे अमल करना। इस दिल में किसी की नफरत न पाल, किसी से नफरत न कर। ले अहद मुस्लिम नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा कि किसी मुसलमान से नफरत ना करना। ले अहद, इस वक्त 7 अरब इंसान हैं दुनिया में और मेरे नबी फरमा रहे हैं किसी से नफरत ना करना। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो आप बैठे थे, मुरीद भी थे सारे। एक हिंदू औरत ना, वो बर्तन में पकोड़े लेके आ गई और अदबन अर्ज कर दी, हुजूर ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, उतनी देर नहीं बच्चों को दूंगी जितनी देर पहले आप नहीं तनावुल करें। आप अल्लाह के वली हैं, आपकी बरकत पकोड़ों में आ जाएगी, फिर मैं अपने बच्चों को भी दूंगा। आपने एक पकोड़ा उठाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खा लिया। वो औरत खुश होके चली गई। अब वो मुरीद जिसने हजरत को सहरी करवाई थी, वो अर्ज करता है हुजूर शायद जनाब को याद नहीं रहा, आपका तो रोजा था। फरमाया मुझे याद है। तो अर्ज की हुजूर हिंदू औरत को खुश करने के लिए आपने रोजा तोड़ दिया। आपने फरमाया इंशाअल्लाह बफदल ही ताला, कल मैं इस रोजे की कदा कर लूंगा, लेकिन अगर दिल टूट जाता तो उसकी कदा कैसे होती। हाय हाय।